हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास का टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री एंड चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें एक टॉपिक आज लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज। कोवलेंट कंपाउंड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So first, that is physical state. So they exist in all three states, like solid, liquid and gas. Means covalent compounds are found in all three states, like solid, liquid and gas. For example, in solid example of covalent compound is like glucose, sugar, wax, naphthalene, polyethylene, etc. In liquid, example of covalent compounds are benzene, ethanol, water, etc. These all are the covalent compounds in liquid state, liquid phase. In gas, examples of covalent compounds are chlorine, hydrogen, methane, etc. These are the example of covalent compounds in gas phase, or you can say gaseous state. Next characteristics, crystal structure. Covalent compounds are made by molecules, and molecules are held together by weak van der Waal force of attraction.
covalent compounds are made by molecules, and molecules are held together by weak van der Waals force of attraction. Like suppose कोई H2O मॉलिक्यूल है इस तरह से, और इस पे मान ली कि कोई एक स्लाइट चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स इससे क्लब टुगेदर हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है अपोजिट पोल का एक दूसरे के साथ एक्सट्रैक्शन से, और उसी तरह से तीसरा मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ जुड़ जाता है, उस तरह से चौथा भी जुड़ता है। इस तरह से, तो इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका बनता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच जो फोर्स होता है दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। And third characteristics is melting and boiling point. Melting and boiling point. So they have low melting and boiling point due to weak van der Waals force of attraction between molecules. It means covalent compounds have low melting and boiling point, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू एनिक कंपाउंड्स। फोर्थ इज solubility. Solubility. They are generally soluble in organic सॉल्वेंट, अंडर ब्रैकेट में कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर solvents means covalent compounds are generally soluble in organic solvents like benzene and not soluble in polar solvents like water. Means covalent compounds are soluble in organic solvents like benzene. Organic solvents को हम non polar solvents भी कहते हैं, और you can say organic solvents are non polar solvents like benzene and not soluble in polar solvent like water. जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में कोवलेंट कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होते हैं, यानी उसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है,
जबकि कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, जैसे कि बेंजीन में कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व हो जाता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल conductivity. Electrical conductivity, they are bad conductor of electricity. They are bad conductors of electricity since they do not have ions to conduct electricity. Covalent compounds are bad conductors of electricity since they do not have ions to conduct electricity. Non-ionic reaction. Non-ionic reaction. They are molecular in nature, so they perform molecular reaction which is very slow and they are molecular in nature, so they perform molecular reaction which is very slow. So जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन आयनिक रिएक्शन शो करते हैं. द नॉन आयनिक रिएक्शन कोवलेंट कंपाउंड्स show non-ionic reaction means they are molecular in nature, so they perform molecular reaction which is very slow. 7 is directional characteristics and isomerism. They form by sharing of electrons, or you can say
the bond formed in covalent compounds, the bond formed in covalent compounds by sharing of electrons. The overlapping of orbitals is directional. So bond form is also directional. Hence, covalent compounds show isomerism. Both structural and स्टीरियो. जैसे कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइसोमेरिज्म. द बॉन्ड फॉर्म इन कोवलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज डायरेक्शनल, सो बॉन्ड फॉर्म इज आल्सो डायरेक्शनल. हेंस कोवलेंट कंपाउंड सो आइसोमेरिज्म. जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि जब ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है. यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बनता है. तो ये बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है. एक्स एक्सिस से बन सकता है और वाई पे भी बन सकता है और जेड एक्सिस पे भी बन सकता है. यानी कि जिस एक्सिस से बनेगा उसी डायरेक्शन, जिस एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगा उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा और जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा उसके एटम भी उसी डायरेक्शन में जुड़ेंगे. जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में हम देखें तो इस तरह से बॉन्ड बनता है और उसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल्स में इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े रहते हैं. तो यदि हम यहाँ पे देखें कि इसके के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री का और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री का. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये डिसाइड करता है कि जो सेंट्रल एटम से जो एटम जुड़े हुए हैं उनका डायरेक्शन क्या है. इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एंगल. तो यदि डिफरेंट एंगल पे उनके जो ओरिएंटेशन होगा, जो जुड़ने का एटम का, वो अलग अलग होगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा एटम्स का जुड़ने का वो कोवलेंट कंपाउंड्स में अलग अलग होगा. और इस तरह से जब डायरेक्शनल अलग अलग होगा, चेंज होगा, तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंपाउंड्स कैन शो द आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स कैन शो बोथ आइसोमेरिज्म, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो बोथ आइसोमेरिज्म. एंड ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स में ही होता है, एनी कंपाउंड्स में नहीं होता है.
अब एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, इट इज न्यू टॉपिक, एंड द न्यू टॉपिक इज difference between ionic and कोवलेंट कंपाउंड, यानी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है. सो द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. सो इधर लेफ्ट साइड में लिखते हैं आयनिक कंपाउंड्स और राइट साइड में कोवलेंट compound. What is the difference? First, they form by complete transfer of electrons from one atom to another. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड ए बी के साथ रिएक्ट करता है और बी के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है. तो ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है और जब ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को देता है तो ये कैटायन में कन्वर्ट है, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बी के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी इसका ऑक्टेट, बी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है. तो इस तरह से, और बी पे माइनस चार्ज हो जाता है. तो इस तरह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. जबकि कोवलेंट कंपाउंड में दे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ electrons by both the atoms. They formed by sharing of electrons. They formed by sharing of electrons by both the atoms. यहाँ पे बाई की जगह पे आप ऑन लिख सकते हैं. दे फॉर्म ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई बोथ द एटम्स. जैसे कि ये कोई एटम है जिसके वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. उस तरह से बी कोई दूसरा एटम है, इसके भी वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. तो इस तरह से ए और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं. तो इस तरह से ए का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, यानी ए के पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बी के पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से जो शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. और इस तरह का बॉन्ड जिस तरह के कंपाउंड में पाया जाता है, जिस कंपाउंड में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड. सो आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर करता है, दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में
दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस, द सेकेंड डिफरेंस इज they are generally solids. यानी आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड्स होते हैं, जबकि they are found in all three states like solid, liquid and gas. Third difference is they are made up of ions. They are made up of ions and there is electrostatic force of attraction between ions. यानी कि आयनिक कंपाउंड्स आयन से बनते हैं और उन आयन के बीच में, यानी दोनों आयन को जो जोड़ कर रखता है, दैट इज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जबकि कोवलेंट कंपाउंड के केस में they are made up of molecules. ये मॉलिक्यूल से बनते हैं and there is weak van der Waals force of attraction between molecules. और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस विच इज वीक. तो यानी कि जो आयनिक आयनिक कंपाउंड बनता है, उसके बीच आयंस के बीच में जो attraction force होता है, that is very strong and which is called electrostatic force of attraction. While in case of covalent compounds are made up of molecules, यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वीक. Next difference, fourth difference is they have high melting and boiling
यानी कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड केस में दे हैव लो melting and boiling point. They have low melting and boiling points, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वीक, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है। ये 4 to 4 होगा, डिफरेंस इज 4 to 4। देन फिफ्थ डिफरेंस इज they are soluble in polar solvents like water and insoluble in organic solvents. Ionic compounds are soluble in polar solvents. Ionic compound polar solvent में soluble होता है, polar solvent में dissolve हो जाता है, जैसे कि वाटर में ionic compound dissolve हो जाता है, जैसे कि नमक, सोडियम क्लोराइड इज ionic compound, सो नमक पानी में आसानी से dissolve हो जाता है। एंड दूसरी तरफ कोवलेंट कंपाउंड के केस में दे आर soluble in organic solvents. Organic solvents called non-polar solvents, and they are soluble in organic solvents and insoluble in polar solvent like water। यानी ठीक आयनिक कंपाउंड्स के ठीक उल्टा, आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सिक्स्थ डिफरेंस इज they conduct electricity, they conduct electricity, they conduct electricity, क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, और जब किसी भी इसको सॉल्यूशन में लेके इसमें यदि हम कोई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड यदि रख लें, इलेक्ट्रोड को यदि प्लस और माइनस चार्ज से वो कर दें, जोड़ दें, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जो सोडियम आयन है ये नेगेटिव तरफ मूव करेगा और जो क्लोराइड आयन है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ड्यू टू आयंस। यानी कि जब किसी भी सॉल्यूशन में आयंस होगा तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। They conduct electricity, means ionic compounds conduct electricity, while
they do not conduct electricity. कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स को जब एक तो कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए, और कुछ कोवलेंट कंपाउंड यदि पोलर सॉल्वेंट में या यू कैन से कि वीक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो भी जाते हैं, तो चूंकि आयंस में कन्वर्ट नहीं होते इसलिए भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, आयंस में नहीं टूटते। Ionic bonds are non-directional. Ionic bonds are non-directional. So, ionic compounds do not show आइसोमेरिज्म, इसलिए आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड केस में कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। Covalent bonds are directional. So, covalent compounds show isomerism. इसलिए कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। आयनिक कंपाउंड्स में इसके बीच का जो बॉन्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड विच इज नॉन डायरेक्शनल, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए आइसोमेरिज्म कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। एंड एट्थ डिफरेंस इज they undergo ionic reaction which is fast. The ionic compounds undergo ionic reaction which is fast, while covalent compounds they undergo molecular reaction which is slow. So these are some differences between the ionic compounds and covalent compounds. So आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बताया आपको समझ में ठीक से आ गया होगा। तो और बाकी इस चैप्टर का जो है वो हम अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।